Hello, hi. Okay, that was sweet. I don't expect people to say hi back. I don't know. Just trained like that. Hi, my name is Harsha. I'm going to be a host for this afternoon. Welcome to Poetry Open Mic. Thank you so much for coming. How many of you are doing this for the first ever time? No, everyone seems. I've seen most first time, like first time at Habitat or first time in life. First time in life. Okay. Oh, that's great. First time. Can you please have a round of applause? Yeah. You never performed before this. So what motivated you today? Today was different. I mean, I haven't gotten the chance to. I've been trying to for years. Okay. It's just never worked out for me. Okay. But now today it did Yeah, somehow. it did. I'm glad. Okay, that's lovely. The rest of you have come here before. Yeah, have a basic understanding. I'll still go through the rules. Everyone has 4 minutes. Okay, 3 minutes 30 seconds. There'll be a light that will flash back. When that light flashes, that means you have 30 more seconds left. Don't start a new piece. Please respect the time because we have another show at 4 o'clock and we want to give everyone time. Okay. Second thing, very important, give trigger warning because today is Sunday. Okay. People have plans after this, so let's not ruin somebody's day. If you have anything to say, just give a trigger warning. That'll be nice. Third very important thing which I have to say in every open mic, have fun. So there's this YouTube channel called Habitat Studios. If you haven't subscribed, I don't know what you're doing. So we are live streaming this right now. After the show gets over, you can take the video from YouTube and you can download it and you can share it on your reels. When you share it on your reels, please give credit, guys. It's weird, right? Credit is like asking the money that you gave to your friend and being like, "Dekho, yaad hai wo din." So like the team is working, a lot of people are putting the hard work to come here do this. So give credit to the photos that you'll share or the videos that you'll share. Okay, and this is not just for here. This is for life. Like I'm just saying, as a photographer, I feel weird asking for people to be like, hey, so like I pointed the camera at you that day, and then like there was a shutter shutting and then clicking, all of that, and then people are like, oh yeah, I will see about it because people don't realize, but it helps. Like on Instagram, it helps. As a freelancer, it helps. Like if people do like your work, they will approach you and ask for more. But if nobody knows where that came from, then there is no way of finding out. So please give credit, not just for this, for anything. Next, I'm sure you guys are going to do this, but read your own piece. A lot of people come and read other people's piece and then they put it up online and then 1,000 people get behind them saying, this is not your piece. Can you at least write it anyway? So even if you're reading someone else's piece, again, give credit to whoever else's piece you're reading. Photos will be clicked, okay? Don't worry about that. You will receive your photos in 1 week's time, okay? Guys, please give us some time. People sometimes after the event they were like, where's my photo? And you're like, sometime, but it's still in the camera. Like I have to take it out, put it on the laptop, do all this jazz. So that's there. Okay, these are the basic rules. But I want you guys to. It feels like there's no energy right now. Okay, so let's just practice. Like let's just show. Yeah, show me. So every time someone comes on stage, you do this. Every time someone goes on stage, you do this. Okay, with me you can talk, don't clap. It's all fine. If you don't want to answer, you can just nod your head. We'll move on to the next person. Okay, you don't have to answer. It's not compulsory. But have fun, regardless of all of this. Have fun here. That's it. We have a good amount of performers. I'm going to call the first performer. Okay, you guys know what to do. You guys want to fill this up? You guys, 2 of you want to come here? Because I think it's just these many of us today. I don't know. आज और कल होली है ना? I think a lot of people might have gone home or there. Yeah, second row में आ जाओ. It'll just be easier for all of us to address. And empty chairs are not fun. Center में आ जाओ. Cool. I'll call the first performer. You guys know what to do. The person, I will not call the person on stage till you guys don't clap properly, okay? For any performer. Not now. Abhi to tum kar loge. Abhi naya hai. When the sixth performer comes, they'll be like, yeah, fine. No, all that won't work. So don't do this for me. Keep that energy, okay, for every single person that comes because writing is a lone process, okay? You guys sit wherever. Does anyone write in groups? Does anyone write? No, okay. So writing, you sit alone and you write, and then you're like, I will go at an open mic and perform this, okay? But before that, when you read the piece, you're like, I'm the best writer alive. And then you come to open mic, you're like, I can't even read my own handwriting, right? So this is the process. Open mic is where you fumble, you'll fuck up, it's all fine. Even if you fuck up somewhere between, it's okay. Look at the audience, see the time, and then if you have the time, then restart the piece. It's completely okay. No one's going to look at you and say, I expected perfection. Why are you giving me this, okay? So today's Sunday, also have fun. You guys woke up in your house, came from some mode of transport. It's not that hot right now, but it'll get hot.
and you guys chose to come here, so please also have fun for yourself for why you came here. Okay, great. I'll call the first performer. You guys know what to do. Yes, let's go. A little more. Can you please have Sun Yan? Sun Yan. Did I say the name? Yan likha hai isme. Okay, Sun Yam. Sayyam. Okay, can we please? हेलो एवरीवन। हेलो। Hi. मेरा नाम सय्यम है और मैं काफ़ी टाइम के बाद परफॉर्म कर रहा हूँ। सो ये जो पोइम है मैंने लव के ऊपर लिखी है, तो इस पोइम के थ्रू मैं अपना प्यार का इजहार कर रहा हूँ किसी से। ठीक है, ओके, तो आपकी इजाज़त है, शुरू करें? Yes, sir. ओके। कुछ तो बात है उसमें, उसकी आंखें पढ़ता है हम। अगेन सॉरी। तो ये शायरी बेसिकली मैंने लिखी है किसी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए। ठीक है। कुछ तो बात है उसमें, उसकी आंखें पढ़ते हैं हम मुस्कुराहट जानने के लिए। कुछ तो बात है उसमें, मुस्कुराती है वो खुद के लिए, दुनिया को झूठा नहीं दिखाती, सादगी से बस प्यार जताती है, वो खुद में खुश देती है। सॉरी, कैन आई स्टार्ट? तो मैंने ये शायरी राइट की है अपने प्यार को इजहार करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। ओके। कुछ तो बात है उसमें, उसकी आंखें पढ़ते हैं हम मुस्कुराहट जानने के लिए। कुछ तो बात है उसमें, मुस्कुराती है वो खुद के लिए, दुनिया को झूठा कुछ नहीं दिखाती, सादगी से बस वो प्यार है बताती, वो खुद में खुश रहती है, किसी को प्यार के झूठे वादे नहीं करती। वो किसी गली से गुजरे, देखते हैं उसे सब, फिर शायर बन जाते हैं। उसकी बिंदी, उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी सादगी, कुछ तो बात है उसमें, गहराई में छुपी, प्यार की मिसाल सच्चाई में दुबी। हर मुस्कुराहट, हर बात एक कहानी है, उसकी सादगी में छुपी मोहब्बत की निशानी है। बहुत बढ़िया। इस निशानी को समझने की कोशिश में खो जाते हैं हम उसकी अदाओं में। वो जब गुजरती है उसकी कलम बन जाते हैं हम। कुछ तो बात है उसमें जो बस दीवाने बन जाते हैं हम। क्या बात? कुछ तो बात है उसमें कि बस दीवाने बन जाते हैं हम। तो ये फर्स्ट थी, अभी एक और है लव के ऊपर ही। ठीक है, तो लव की शायरी। जिंदगी का हर लम्हा प्यार की कहानी है, खिलते दिल की बात कुछ और होती है, दिल में छुपा राज अनोखी बात है, दिल में छुपा राज अनोखी बात है, प्यार का एहसास जज्बात की बरसात है। क्या बात? मोहब्बत का सफ़र, रिश्तों का सिलसिला, हर पल में छुपा एक नया मंजर है। इस प्यार की दास्तां में गहराई है गहरी, हर शब्द में छुपी दिल की सदा है। तो ये 2 शायरी थी। आई थिंक टाइम है अभी 30 सेकेंड। ओके, तो मैं कुछ जो मैंने आज एक राइट किया था कुछ, तो मैं ना कैफ़े में बैठा कॉफ़ी पी रहा था और मैंने देखा कॉफ़ी में कि एक दिल बनाते हैं ना वो, तो एक्चुअली उसमें दिल था नहीं। तो मेरे माइंड में एक ऐसे आया कि मैं कुछ राइट करता हूँ। एंड दिल का पता कहाँ है राजों में छुपा हुआ, दिल का पता कहाँ है राजों में छुपा हुआ, तेरे आंसुओं की गहराई में मेरा दिल बसा हुआ। क्या बात? तेरी आंखों की गहराई में मेरा दिल बसा हुआ। थैंक यू। Guys, come on. Thank you so much. Also,
officially started Poetry Open Mic because a love poem has been performed. So this is how it goes. That's how it goes. Okay. Also, I like playing a game. I've started playing this game about like 2-3 months ago in open mics. I love watching football. Any football fans? Anyone? Oh, lovely, great. So you guys know football concept, right? 2 teams are there. Whoever scores the highest goals wins. Okay. In Poetry Open Mic, we'll play this game where there are 2 teams who will play football. One is team love. One is team heartbreak. Okay. This happens in every open mic. Okay. Sometimes some person will come and do a love poem and then a heartbreak, and you don't even know if it's the same relationship or different. No idea. So right now, sir has started this match by hitting a goal towards love. Okay. So team love is 1 goal. Again, remember, you guys don't have to lean in to make this win. Yesterday, after doing it like 6-7 times, for the first time, love won. Otherwise, it was like 16 logo mein se 12 people have said heartbreak, 4 are saying love. Okay. And in most other shows, the margin was very high. Yesterday was the first time where 5 goals were scored for love and like maybe 3, I think, were for heartbreak. So today, let's see where this goes. But remember, all of you guys are winners. Okay, all of this is just for fun. Actually, heartbreak wali bhi thi. But what mood are you feeling right now? Are you in mood of love or are you in the mood of heartbreak right now? I think love. Okay. How many of you are in the mood of love at this moment, in phase in life? Right now you're feeling love. None of you? Love. Okay, you guys should be more proud like this. the way people share heartbreak. Now you're like, how many of you are feeling in the phase of heartbreak right now? No one. If anyone reads the heartbreak piece, I swear to God. 2 of you, okay. And how many of you are indifferent, are in between, कि फर्क नहीं भी पड़ता है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता basically. Rest of you, okay. Cool. I don't know. I was going to say maybe people have stopped believing. But let's see today evening where this whole room collectively, which team wins, we'll figure out. We'll see where the mood of the room is. Great. I'll call the next performer. You guys know what to do? Yes. Let's go. Anil, can you please have Pranav? Let's go. तो मैं अपने बारे में बताता हूँ. मेरा नाम प्रणव है और मैं इंदौर से आया हूँ इस माइक के लिए. तो क्या बात बहुत बढ़िया. हार्ट ब्रेक से स्टार्ट करते ना. तो बहुत सारे लड़के यहाँ बैठे. तो लड़कों के ऊपर बताता हूँ कि जैसे अक्सर होता है ना कि हम किसी अपने दोस्त को, अपनी गर्लफ्रेंड को मना करते हैं कि देख कुछ भी हो जाए इस लड़के से तो बात नहीं करें. होता है ऐसा. तो हम क्यों मना करते? क्योंकि हम लड़के, तो हमें पता है लड़के कैसे है ना. तो उस पर है कि मुस्कुराती महफिलों में हमारा दर्द हमको है मालूम. आपको मेरे साथ रिपीट करना है, हमको है मालूम. ठीक है, करो. मुस्कुराती महफिलों में हमारा दर्द हमको है मालूम. तुम बिन बिताई कैसे वो रातें सर्द हमको है मालूम. और सच कहे तो तुम्हारे किसी दोस्त से दिक्कत तो नहीं लेकिन. और सच कहे तुम्हारे किसी दोस्त से दिक्कत तो नहीं लेकिन. पर असली में होते हैं कैसे ये मर्द हमको है मालूम. और इस इंसान में, इसी प्यार में लड़कों ने मतलब लड़कियों से कुछ भी वादे करने लग जाते हैं. चांद तोड़ के लाएंगे, तारे तोड़ के लाएंगे. तो उसमें लिखा था कि हम दोनों इश्क में कितने पागल थे. एक गली तक का साथ ना था हमारा मगर चांद तक के वादे थे. वो तुम्हारे बेरंग ख्वाबों को रंगीन करना, इश्क में खुद को संगीन करना, तुम्हारी सियाह ज़िंदगी में रोशनाई भरना, मेरे अपने घर जलाने के जो इरादे थे. हम दोनों इश्क में कितने पागल थे. वो सूने घर में मिलने की चाहत हमारी थी जिस्मानी या थी रूहानी. छतों छत हमारा नैन लड़ाना, तेरा मेरे घर को ताकना, ये इश्क में कैसी आदत थी. और कभी घर के सामने वाले मंदिर में ना आई मुझसे मिलने आज तक. कि कभी घर के सामने वाले मंदिर में ना आई मुझसे मिलने आज तक. और दुनिया घूमने के वादे करती थी. सुनो तुम इश्क में वादे नहीं बस बातें करती थी. बस बातें. इसके बाद हमारी गर्लफ्रेंड हमको छोड़ के चली जाती है. फिर हम उससे एक तरफा मोहब्बत करने लग जाते हैं. तो उस पर सुनिएगा कि एक तरफा मोहब्बत. मैंने खत बहुत लिखे, लेटर्स हम लिखते हैं कि एक खत है जिसका जवाब आया नहीं. एक खत है जो अधूरा लिखा है. एक खत बस्ते में, एक खत रास्ते में. एक खत लिखना है, एक खत लिखा पड़ा है. और भी कई सारे खत हैं मगर मलाल ये है कि इनमें से कोई एक खत भी नहीं जो किसी ने मुझे लिखा हो. क्या मैं काबिल तारीफ नहीं? क्या मैं मोहब्बत की खातिर नहीं? क्यों मैं क्या मैं काबिल तारीफ नहीं? क्या मैं बना मोहब्बत की खातिर नहीं? क्यों हमेशा मैं ही बाहें फैलाए खड़ा रहूं? कभी तो कोई आए और मुझे बुलाए और फिर मैं अड़ा रहूं. मुझे बताऊं कि तेरे इश्क में कितना इंतज़ार किया था. इश्क में तेरे खुद को कितना बेजार किया था. जब वो पास आए तो उसे गले लगाऊं और बताऊं कि इश्क में तेरा कितना इंतज़ार किया था, खुद
कितना बेजार किया था, तेरी सोहबत के खातिर कितना तड़पा, इश्क में जाने कितनी बार बिखरा मैं, और इश्क में कोई नहीं। सो वी विल स्टार्ट ऑन नेक्स्ट पेज की दो शेर है मेरे पास की, मज़हब इश्क का कोई मज़हब नहीं होता, बाबा कहते हैं कि मज़हब इश्क का कोई मज़हब नहीं होता, यहाँ कोई किसी का खुदा तो रब नहीं होता। मज़हब इश्क का कोई मज़हब नहीं होता, यहाँ कोई किसी का खुदा तो रब नहीं होता। और जब जिसका मन करता है वो छोड़ जाता है, कि जब जिसका मन करता है वो छोड़ जाता है, यहाँ कोई इज्जत से आदाब व अदब नहीं होता। और अब तेरे होठों पे ये लाली कहाँ से आती, कि अब तेरे होठों पे ये लाली कहाँ से आती है, अब तो मेरे लबों पे तेरा लब नहीं होता। क्या और जैसे कि हम प्यार में इंसान कितना पागल हो जाता है ना, किसी इंसान को पाने के लिए रोज़ मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, तो उस पर कि मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया है तो तेरे कान्हा को पूछती है, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया है तो तेरे कान्हा को पूछती है क्या, और क्यों छोड़ा भला तूने उस नादान को, हाँ क्यों छोड़ा भला तूने उस नादान को, बताना, वहाँ बैठी राधा तुझसे पूछती है। थैंक यू गाइस, दैट वाज One more time, go on, one more time. We had a conversation last time. I just remembered. How are open mics in Indore now? और ज़्यादा हो रहे हैं अभी कि हाँ? We have 100 audience in one. Oh, you see. So he came last time, okay, and like this only casually, he's like, मैं इंदौर से आया हूँ, and I was like, okay, like I'm come from Bangalore 9 years back. He's like, नहीं यार इसके लिए सिर्फ. And I was like, I came from Andheri, I don't even feel like put effort in doing all this. So, and then he said that he organizes open mics. So if you guys are anyone in Indore who are interested in open mics, please get in touch with him. Also now he's saying 100 people are coming. 100 people मतलब हर हफ्ते कितने open mics होते हैं? मतलब कि एक पोइट्री ओपन माइक होता है संडे को। Okay, एक ही होता है? हाँ, नहीं मतलब कि जो ऑर्गेनाइज हम करते हैं हाँ, आप सनडाउन लाइव से, हाँ। और एक होता है अनफिल्टर्ड कॉमेडी। हाँ। तो वो भरा जाते हैं, लेकिन फिर उनको कि स्लॉट चाहिए स्लॉट। ये हर जगह होता है ये। और ऑडियंस 100 हर संडे को, हाँ, क्या बात है यार, वेरी हाँ, गुड। बढ़ रहा है धीरे-धीरे पोइट्री से बहुत सही है। ज़्यादा। बट वहाँ पे कैसा हॉल है, मतलब कैसा रूम है कि कैसा वेन्यू है, क्योंकि 100 लोग बिठाना या ऐसे। मतलब नॉर्मली हम एक वेन्यू पे करते हैं, पर कभी-कभी हम अलग-अलग वेन्यूज पे करते हैं जहाँ बड़ा रूम मिल जाए। ओके ओके ओके, लवली, कांग्रेचुलेशंस यार। होपफुली तुम अगली बार आओगे तो 500, 1000 और नंबर्स और बढ़ते रहे। दैट्स द होप, दैट्स रियली नाइस। बट यू वेरी कन्विंसिंगली ऑब्वियसली पुट अ गोल इन हार्ट ब्रेक, लाइक मतलब वो हार्ट ब्रेक ही था, इसको लव तो बोल ही नहीं सकते इसने। सॉरी यार, मैं कोई व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट थ्रू अ हार्ट ब्रेक? हाउ लॉन्ग बैक इज इट? लास्ट मंथ? वेरी फ्रेश। ओके ओके, तो ये वाला जो लिखा है वो इससे इंस्पायर होके? ओके ओके, cool cool, I hope things get better in some time. ठीक है, I got the third performer. You guys know what to do, you guys know what to do. A little more, come on guys, can we please have Asha? Keep clapping till she comes on stage. Is it fine? Can you hear me? Yes. अच्छा, कल होली है और ये जो ब्रेकअप और लव के बारे में हो रहा है, मैं उसके बारे में नहीं बोलने वाली हूँ। सो आई एम आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। होली पे पोएम बोल रही हूँ। हम लोगों की बचपन की होली बहुत बिंदास होती थी, बहुत मस्त, किसी की कोई टेंशन नहीं है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या टाइम हो रहा है, बस बाहर जाना है, खेलना है, कितने लोगों को पकड़ना है, कितना रंग लगाना है, कितने गुब्बारे फेंकने हैं, यही टारगेट होता था। मस्ती करनी है, मज़ा करना है। लेकिन आजकल वैसा नहीं होता। तो इस पोएम का नाम है बचपन की होली। आपको मेरा साथ देना होगा। पैराग्राफ के बाद है, रंग रंगीली मस्तानी सी होती थी बचपन की होली। बस इतना बोलना है। आप बोल पाएंगे? एक बार बोलिए, रंग रंगीली मस्तानी सी होती थी बचपन की होली। प्लीज एक बार और, थोड़ा जोश जोश जोश। रंग रंगीली मस्तानी सी होती थी बचपन की होली। ठीक है,
मेरा गला थोड़ा खराब है, आप मेरा साथ देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? मैं ऐसे करूँगी तब बोलना। बचपन की होली, रंगों की थैली और गुब्बारे, रंगों की थैली और गुब्बारे, रंगीले पानी से भर के सुबह सवेरे बिन कुछ खाए निकल पड़ती बच्चों की टोली, रंग रंगीली मस्तानी सी होती थी बचपन की होली। पकड़ कर सबको रंग लगाते, हाथ में ले हथियार गुब्बारे, साथ निशाना दे मारते, गूंजती थी रंगों की बोली, रंग रंगीली मस्तानी सी होती थी बचपन की होली। हाथ में रख गहरे रंग गीले, हाथ में रख गहरे रंग गीले, पड़ते थे पीठों पर छापे, रंगों की बारिश से बनती चेहरों पर सतरंगी रंगोली, रंग रंगीली मस्तानी सी होती थी बचपन की होली। भूख लगे पर घर कौन जाए, भूख लगे पर घर कब जाए, खुल जाते थे कितने दरवाजे, लगा रंग घर में हर जन को, लगा रंग घर में हर जन को, गप कर जाते गुजिया जलेबी, रंग रंगीली मस्तानी सी होती थी बचपन की होली। सूरज चढ़ता गर्मी बढ़ती, सूरज चढ़ता गर्मी बढ़ती, पानी को पिचकारी तरसती, सूरज चढ़ता गर्मी बढ़ती, पानी को पिचकारी तरसती, खड़े होते हम छज्जे नीचे, छज्जा आप सबको पता है क्या होता है, बालकनी होती है, खड़े होकर छज्जे के नीचे कहते आंटी डालो पानी, रंग रंगीली मस्तानी सी होती थी बचपन की होली। भरी दोपहरी बारह के आगे, भरी दोपहरी 12 के आगे, आखिर हम घर को भागे, दबे पांव घुसते घुसते भी पड़ ही जाती माँ की झिड़की, रंग रंगीली मस्तानी सी होती थी बचपन की होली। बदरंग बड़ी फीकी फीकी सी, अभी बचपन की होली खत्म हो गई। बदरंग बड़ी फीकी फीकी सी होती है आजकल की होली, धरती प्यासी पानी की किल्लत, सूखती नदियां सिमटते पनघट, भूखे पेट सोते कितने जन, किन किन को मिलती है रोटी, बदरंग बड़ी फीकी फीकी सी होती है आजकल की होली। या तो तब परवाह नहीं थी, या तो तब परवाह नहीं थी, ना तो कद ना उम्र सही थी, ना तो कद ना उम्र सही थी, पर अब प्यासे होठ देखकर कैसे भाए गुजिया जलेबी, बदरंग बड़ी फीकी फीकी सी होती है आजकल की होली। ये लास्ट पैराग्राफ है। इस लास्ट पैराग्राफ के लास्ट अंत में आपको फिर से वही बोलना है, रंग रंगीली मस्तानी सी, पर बोलना मेरे बचपन की होली, यानी हम सब मेरे बचपन की होली। तो ये है लास्ट पैराग्राफ। ओरे श्याम कोई रास रचाओ, ओरे श्याम कोई रास रचाओ, बिन मौसम बारिश ले आओ, ओरे श्याम कोई रास रचाओ, बिन मौसम बारिश ले आओ, भीगे जो मिट्टी का सीना, भर जाए चहु और ठिठोली, मिलजुल कर फिर से सब खेलें, रंग रंगीली मस्तानी सी मेरे बचपन जैसी होली। हैप्पी होली। Come on, wrong time. Thank you so much. Thank you so much. Holi, how many of you are big Holi players? Like big, मतलब crazy. आप बहुत खेलते थे आप? मतलब क्या, किससे? सिर्फ कलर से कि बाकी सामग्री से? क्या क्या? हल्दी वल्दी मिक्स करके, Okay. अंडा डाल के। Yeah, even I'm from Bangalore, so Bangalore also had this concept. मतलब one set of people would throw a tomato या eggs, which is very scary. बाकी color ही थे. But anything else? Anyone else? None of you or कोई? I've seen people take this silver color, वो 3-4 दिन तक रहता है।
One is that the गुलाल या what is that dark color, जो मतलब एक बच्चा दो बच्चे रहते थे क्लास में जिनका मतलब कलर उतरा ही नहीं है उनको किसी ने थोड़े मतलब वो ज़्यादा रह जाता है 3-4 दिन के लिए, बट दैट इज़ अ लिटिल टू मच. बट all of you guys played. Is there someone who didn't play Holi at all? Someone was like कलर से नहीं मेरे को नहीं होता है या ऐसे नहीं? Okay. How many of you are those people who filled water balloons and then randomly threw at people on the road? Oh, all of you guys. But like discreetly कि सीधा मुंह पे कि कहीं से छुप के मतलब discreetly. Oh, wow. And then you would see the reaction, feel happy that people are troubled. Holi is like troubling people who don't like Holi. It's like this is like a little crazy. Wow. Anyone who got caught in all this? And anyone who threw someone and then they found you or they got angry or like, yeah? And what happened? He choked me and then dragged me. What? Yeah, he wasn't happy. No, as in, so you threw, the person saw you. Yeah. Like it was- After me, he caught me by the throat and then dragged me on the road and then dropped me and then said, "Don't do that again." Very interesting way of intimidating someone कि इतना इंटेंस करके मत करना बस. एक बार हुआ था पंजाब हाँ, में. हाँ. मैं घर में था और मैं बाहर से देख रहा था कि एक बंदा जा रहा था बाइक से और सरदार थे, उन्होंने क्या किया, वो पानी वाला जो बलून होता है उसमें रंग था तो उसके मुंह पे मार दिया. बाइक रुक के उस बंदे ने रंग लिया और उसके मुंह पे थप्पड़ मारा. ये कुछ हुआ. वेरी होली थीम्ड अग्रेशन. मतलब मारेंगे पर कलर डाल कर. एनीवन एल्स यू वेंट थ्रू? और वो कह रहा था कि तब बुरा क्यों मार रहे हो होली. आई थिंक वैसा है ये कि किसी ने मार दिया होगा किसी को बहुत साल पहले, समझता अरे बुरा क्यों मान रहे हो यार, होली है ठीक है चलता है. व्हाट हैपेंड? यू गॉट कॉट? मैं सीनियर्स को मार रहा था तो फिर वो लोग का ग्रुप आया, फिर वो लोग ने मेरे को चिक्कड़ में लेटा दिया. मतलब कितने लोग को मारा था और तुम अकेले थे? मैं अकेला था, उधर एक को ही मारा था. फिर वो लोग का 4 ग्रुप आके चारों ने पकड़ा ऐसा, 2 हाथ 2 पैर और चिक्कड़ में मिक्स कर दिया. फिर बोला कि आपको बुरा ना मानो होली है. गुस्सा आ गया था. वो सीनियर जूनियर का गुस्सा था कि सिर्फ होली नहीं खेलनी थी इसलिए गुस्सा था? अचानक में मैंने मारा ना सर. अरे बट अभी होली के दिन अचानक ही तो आएगा. ऐसे प्लान करके तू खड़े रहे अभी मारने वाला हूँ मैं ऐसे. ओपन हो गया उससे. यार लोगों फिट जाते. बलून तो नहीं हुआ था लेकिन बकेट हुआ था. लाइक मेरे आई कॉल्ड सम ऑफ माय फ्रेंड्स और ये बाहर के थे एंड मेरी गले वाली लोग खेल रहे थे. तो देयर वर सम आंटीज दैट वर प्लेइंग एंड रनिंग अराउंड एंड दे वर स्कैर्ड कि कहाँ से आ रहा है. तो मेरा दोस्त बकेट लेके आ गया और सीधा आंटी के ऊपर डाल दिया उसने. एंड वी थॉट शी विल फ्रीक आउट बट शी वाज एक्चुअली कूल. शी डिडंट शी वाज लाइक करो यार तुम लोग, मतलब होली है, दिस इज इफ टुडे इट डजंट हैपन देन इट्स वरिंग. अगर कोई और दिन हुआ तो देन ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस. So it was nice to play Holi while it existed. But the sad part is I am from Bangalore. There is no water. so like it's a little bit of crisis right now to figure out मतलब होली खेलना है. Holy priority is not there. Like water, drinking water, all of that is such a big thing. Cool. I will call the next performer. You guys know what to do. Yes. A little more. Can we please have Deepak? He's coming all the way from the second row, guys. Keep clapping till he comes on stage. आवाज़ आ रहा है? हाँ, मेरा नाम दीपक है और मेरा स्टेज नेम DDSR है. मैं कविताएं लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं बता दूं मुझे चावल बहुत अच्छा लगता है, तो उसी पे मैंने 2 लाइन यूँ लिखा था कि जिस तरह मैं चावल खाए बिना नहीं रह सकता, उसी तरह पापा मम्मी और 2 भाइयों के बिना नहीं रह सकता. अभी बात करते हैं लव और ब्रेकअप ये सब की. तो मैंने जब 1.5 साल पहले लिखना स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसे ही एक्स गर्लफ्रेंड पे लिखा था. तो मैंने यूँ लिखा, पहले शायरी है, कुछ ख्याल कहूँगा, कुछ शायरी कहूँगा और कुछ 1-2 कविता. तो यूँ लिखा था मैंने कि इश्क ने हमें लिखना सिखा दिया, इश्क ने हमें लिखना सिखा दिया, शुरुआत उन्हीं पर लिखकर हुई थी, शुरुआत उन्हीं पर लिखकर हुई थी. तो यूँ लिखा था कि जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं ना कि
यू आर सो ब्यूटीफुल, बट हिंदी में मैंने लिखा तेरे जैसा न कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही है इस शहर में। क्या एक और ख्याल लिखा था यूँ कि हर एक पल यादें सारे लिख चुका हूँ, हर एक पल यादें सारे लिख चुका हूँ, न कहना मुझसे ये सारे मिटाने को, कुछ तो हमारे पास रहने दो। एक और यूँ लिखा था मैंने शायरी की, मेरी मोहब्बत और उनके दोस्त, मेरी मोहब्बत और उनके दोस्त, उनके दोस्तों से तो मिलना हो जाता है लेकिन उनसे नहीं, उनके दोस्तों से तो मिलना हो जाता है लेकिन उनसे नहीं, उनके दोस्त उन्हीं को याद नहीं करते, एक हम हैं जो उन्हें हर रोज़ याद करते हैं। एक और शायरी यूँ लिखा था कि मैं हंसकर सुनाता हूँ हमारी कहानियाँ औरों को, मैं हंसकर सुनाता हूँ हमारी कहानियाँ औरों को, किसी ने मुझे अकेले में देखा नहीं। क्या बात। एक और लिखा था यूँ कि किसी ने कहा मुझसे क्यों रो रहे हो, किसी ने कहा मुझसे क्यों रो रहे हो, किस बात पे रो रहे हो, मैंने कहा उनसे किसी बात पे रोना नहीं आया, उन्हें याद किया तो रोना आया। क्या बात है। एक आखिरी शेर कहूँगा यूँ कि एक ख्याल है, सॉरी, एक ख्याल लिखा था मैंने लास्ट वीक की, हसरत उसमें वर्ड है, उसका मतलब होता है डिज़ायर, विश, ख्वाहिश। तो मैंने यूँ लिखा था ख्याल की, एक हसरत थी अकेले रोने की, एक हसरत थी अकेले रोने की, अब हर रोज़ पूरी हो रही है, अब हर रोज़ पूरी हो रही है। क्या बात है। जैसे कि अभी मैं टाइम है तो मैं कहता हूँ, एक और कविता कहता हूँ जो मैंने लिखा था। इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे 4 साल से काम कर रहा हूँ, परेशान हो चुका काम करके तो मैंने यूँ लिखा था, ऐसे ही मॉर्निंग में जा रहा था, मैंने लिखा हर सवेरे उठकर मन न करे जाने का दफ्तर, हर सवेरे उठकर मन न करे जाने का दफ्तर, दिमाग कहे काम मत कर, दिमाग कहे काम मत कर, नादान दिल कहे कुछ दिन और कर, नादान दिल कहे कुछ दिन और कर, माना कि घर चल रहा है इसी काम से, माना कि घर चल रहा है इसी काम से, न जाने क्यों रहने लगा हूँ परेशान से, न जाने क्यों रहने लगा हूँ परेशान से, मुझे पता है कि नया काम लग जाएगा कुछ दिनों में, मुझे पता है कि नया काम लग जाएगा कुछ दिनों में, फिर भी क्यों रहता हूँ परेशान इन दिनों में। क्या बात है। मैं हर ओपन माइक में एक लास्ट में एक शायरी कहता हूँ, तो इसमें भी वो शायरी कह के मैं जाऊँगा। तो मैंने यूँ लिखा था कि हम सभी को ज़िंदगी बहुत मौका देती है, कुछ लोग काम करते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग आलस दिखा के रह जाते हैं। तो मैंने शेर यूँ लिखा था कि ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया, एक हम हैं आलसी जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया। क्या बात है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। Heartbreak scores another goal, so and fine for his performance. Both, come on guys, one properly, everyone. Yes. Sorry to say, guys, and this applies to me also, all of us, very heartbroken people in poetry, like very, very heartbroken. Oh, dude, I don't even know. I've been thinking, like, because there's so many love and heartbreak poems, we should have a whole show based on heartbreak, like just heartbreak poetry or love poetry, and then separate the two, and just gather people who are all into heartbreak or gather people who are all into love. That way, like, it's more like balance in that sense is there. Because like I told you, sometimes people come and do 2 pieces and you don't even know which, like, what relationship are they talking about. So this is interesting to have. Yeah, we should have a heartbreak open mic, followed by a crying open mic. We could sit and cry after that, so that also works out. Okay, got the next performer. You guys know what to do. Let's go, let's go, let's go. Can we please have Ayush? Keep clapping till he comes on stage.
Thank you so much. Can we have a round of applause for Harsh, please? He's been doing a fantastic job. So, guys, my name is Ayush, and it's been a long time since I've performed on stage, or in bed, or in life in general. कहीं कुछ नहीं हो रहा है. मतलब मेरी लाइफ में इतना सिंगलनेस है कि आई एम सिंगल बाय चॉइस, हर चॉइस. आई एम अ वेरी जेन्युइन गाय. मुझसे अगर लड़की पूछते कि और बता क्या कर रहा है, मैं तेरे पे ट्राई कर रहा हूँ. स्ट्रेट टू द पॉइंट. और बहुत ज़रूरी होता है बताना, क्योंकि मैं एक बंदी के साथ डेट पे गया था. वो मुझसे कहती कि मुझे तो साइंस ही समझ नहीं आते, बॉयज़ के साइंस ही समझ नहीं आते. मैं 3 दफ़ा तेरे साथ टेलर स्विफ्ट की फिल्म देखने गया हूँ. इतनी तो पसंद नहीं हो, तेरे सामने से टेलर स्विफ्ट निकल जाए तो समझ नहीं आए. मतलब आपने बनी और कछुए की कहानी सुनी है? पहला कौन आया था? दूसरा कौन आया था? तीसरी ये आई थी. इतनी धीमी है ये. बट जी प्यार तो प्यार होता है. एंड आई थिंक इन लव द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट आई फाइंड इज दैट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग ऑफ थिंग्स ऑफ द अदर पर्सन, जब उनका अंश आपके अंदर दिखाई देने लगता है ना, आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. द थिंग्स दैट दे बिलीव इन, यू स्टार्ट बिलीविंग इन टू. द गर्ल दैट आई went out with, she was a big believer of shooting stars. Anybody believe in shooting stars? टूटता तारा देख के कोई विश करता है? Wow, nobody. ठीक है, तो कभी उस पर लिखा था कि 22 वर्षीय मैं और वो झूले पे बैठे थे अगल बगल. उसने कहा कि आंखें बंद करके दुआ मांगो, तारा टूट रहा है, और मैं करने लगा उसकी नकल. उसने बताया कि सच हो जाती है तो लिख दिया करो कोरे कागज़ पर, जो है टूटते तारे में. कागज़ भी थे, तारे भी बना लिए. छत पर गया और लिख दी दुआएं तुम्हारे बारे में, कि चांद की रोशनी जब तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है ना, तो मुझे लगता है कि मैं चांद छुआ करता हूँ. बस ये रोशनी बनी रहे, मैं सिर्फ इतनी सी दुआ करता हूँ. कि मुझे अंदाज़ा रहता है तुम किस रंग का कुर्ता पहनोगी, मैं भी उसी रंग की शर्ट पहन लिया करता हूँ. और तुम्हें लगता है कि ये इत्तेफाक है और बस वो कायम रहे, मैं बस इतनी सी दुआ करता हूँ कि तुम बस खुश रहना, क्योंकि तुम होती हो ना, तभी मैं मुस्कुराया करता हूँ. और अगर उदास हो तो मुझे याद कर लेना, मैं बस इतनी सी दुआ करता हूँ. तो हर शाम कागज़ को पीला कर मैं एक तारा फेंक दिया करूँगा गलियारे में. तुम समझना कि यह आसमान से गिरा है और लिखी हैं इसमें दुआएं तुम्हारे बारे में. थैंक यू. बहुत वो रोने लगी है सुन के, रोने लगी. आई थिंक या तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, या तो मेरी पोइट्री ओवर द टॉप लगी थोड़ी सी. आई डोंट नो. बट फिर उसने कहा कि अभी थोड़ा वक्त गलत है तो हम साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि उसको सडनली साइबेरिया मूव करना पड़ गया, जो मैं जानता नहीं कहा है. और वो कहती कि वहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग कुछ नहीं चलता, और हर किसी का इंस्टाग्राम यूज़र नेम है. काहे कि हमारी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, फ़ोन नहीं लग रहे. पर मैं बहुत परेशान था उस चीज़ से. तो मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि देखो, जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारे एक्शंस है, तुम्हारा रवैया है. वो एक ही चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में तुम कंट्रोल कर सकते हो, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू प्रोजेक्ट आउट. सो मेक श्योर दैट यू क्लीन दोस, और उसके अलावा नहीं करो. तो उस पर कभी लिखा था कि अरे क्या हुआ, ज़्यादा सोच में पड़ गए क्या, बाहर से मुस्कुरा दिए पर अंदर से परेशान ही हो. लग रहा है तुम्हें देखकर कि सिर्फ बैठे हो यहाँ, पर मन में कहीं और ही हो. कभी आईने में खुद से नज़रें मिलाओ तो जायज़ है लगना कि संतुलन खो बैठे हो. उलझे हो विचारों में, रो लेने का मन है, फिर भी सब ठीक है ऐसा कह देते हो. कभी निराशा में जो अश्क बहे उसे कागज़ पे उतार लेना, तो जो घेरा सा बन गया है ना इस कागज़ पे, उसे ही अपना घर मान लेना. गहरा रंग है जहाँ, वहाँ तुम्हारी नीयत परखी जाएगी. तो ध्यान रखना कि इस घेरे को प्यार से संभालो, फिर देखना कामयाबी तो साली झक मार के आएगी. इस घेरे की सीमा पर कुछ रिश्ते बनेंगे और कुछ टूट जाएंगे, पर अपनी किस्मत को दोष मत देना, क्योंकि जिन्हें रुकना होगा ना वो किसी भी बहाने से रुक जाएंगे. और ख्याल रखना कि अकेले ना उठाने लग जाओ इस पूरे कागज़ का भार. ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाए, तो इतना सीरियस मत हुआ कर यार. चलो जाने से पहले एक जोक सुनाता हूँ. बताओ ज़्यादा बादाम खाने से क्या होता है? नहीं, बादाम खत्म हो जाते हैं. तो अब सोचो ज़्यादा दिमाग चलाने से क्या होगा. थैंक यू सो मच, यू बीन अ लवली ऑडियंस. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Can you please have a round of applause? Love the badam one, dude. What a classic misdirection. Just everyone's like, of course. Lovely.
What would you call that? Would you call that love or heartbreak or in between? First one was love. First one was love, yeah. But overall, how are you feeling right now? Then the goal will go in that direction. Indifferent. But you'll have to choose one because we don't have third team indifferent. Heartbreak only? Okay. So we are at Heartbreak 3. 2-1. 2. First was love. 2 were heartbreak after that. And yeah, we're done with we're done with 5. I'm missing the count somewhere, guys. Are you gonna? How many? I don't know. Let's just do 3 and 2. Fine. 3 is heartbreak, 2 is love. We'll see where this goes as the evening progresses. Cool. We have 5 more people, 5 or 6 more people there. I hope you guys have the energy. The energy is going down a little bit. So when I call the next person, please start. Can we please have Shishir? Yes. हेलो, हैप्पी होली सभी को। एंड मेरा ना ही हार्ट ब्रेक है ना ही लव है। सॉरी। मुझे एक होली का न्योता आया है तो आप सभी को उसमें शामिल करना चाहूँगा। कहा है कि कृष्ण संग होली खेलने आओगे क्या? मनमोहन माधव मोहन के घर पे है होली। मनमोहन माधव मोहन के घर पे जाना है होली पे। राधा भी होगी संग खेलने लगा कर रंग पर चोली। पहला टीका कृष्ण को फिर ही मनाऊँ होली में। पहला टीका कृष्ण को फिर ही मनाऊँ होली में। कैसे छोड़ूँ ये अवसर जो आ गिरा है झोली में। मुझ संग वृंदावन आओगे क्या? कृष्ण संग होली खेलने आओगे क्या? बंसी की धुन पर नाच नाच कर हो जाएंगे हम पावन। बंसी की धुन पर नाच नाच कर हो जाएंगे हम पावन। वृंदावन की गलियों में मिलेंगे जब मदन मोहन। है नटखट सा स्वभाव उनका करते सबका मनोरंजन। है नटखट सा स्वभाव उनका करते सबका मनोरंजन। दही की हांडी ही ढूंढे हैं चाहे हो जितने व्यंजन। मुझ संग चकोरी करने आओगे क्या? कृष्ण संग होली खेलने आओगे क्या? छुपकर बैठे होंगे वो सावधान हमको रहना है। छुपकर बैठे होंगे वो सावधान हमको रहना है। पहले उनको रंगाना है रंग में फिर ही मुझे रंगना है। अब ये खेल खेलने मुझे बड़ा मज़ा जो आना है। अब ये खेल खेलने मुझे बड़ा मज़ा जो आना है। राधा संग गोपियों को अपने साथ मिलाना है। मेरे संग ये खेल खेलने आओगे क्या? कृष्ण संग होली खेलने आओगे क्या? गुलाल साथ ले लेना मैं पिचकारी ले लेता हूँ। गुलाल साथ ले लेना मैं पिचकारी ले लेता हूँ। तैयारी में रहना है पते की बात करता हूँ। सुना है दुर्लभ है मिलना पर मुझे ये न्योता आया है। सुना है दुर्लभ मिलना है पर मुझे ये न्योता आया है। संग लाना प्रियजन को ऐसा उसमें लिखा है। मुझ संग प्रियजन आओगे क्या? कृष्ण संग होली खेलने आओगे क्या? गोविंदा गोपाल संग समय जो मिले बिताने को। गोविंदा गोपाल संग समय जो मिले बिताने को। तो भूल जाऊँ मैं सब कुछ क्या ही है खो जाने को। लठमार हो या रंगों वाली बस ये महसूस करना है। मैं तो चल रहा हूँ तुमको साथ ले जाना है। अंत में यही पूछता हूँ कृष्णा संग होली खेलने कहो ना आओगे ना? Thank you so much. Wait, you were Ayush or Ayush? Okay, you're Ayush. Okay, cool. We have an Ayush also, so I just thought I'll check. Okay, guys, cool. Let's start clapping. Call the next performer. Can we please have Ayush? Hello everyone, I am Ayush. So ये पता नहीं लव है हार्ट ब्रेक है बट ऐसे मज़े में लिख दिया था। हाँ, तो इसका नाम है द वॉइसेस ऑफ अ डिस्टेंट स्टार। ओके। द रोड्स आई ट्रैवल विद यू आई नेवर ट्रैवल विद एनीवन। द डिस्टेंस वी कवर्ड कैन नॉट बी मेजर्ड। द डे आई फर्स्ट सॉ यू आई फेल्ट माई हार्ट रेसिंग, craving for you. The first time we went to school together, although it was the coldest day of that winter, but we were together.
the uncharted territories we invaded just for the rush of adrenaline. I must have heard you a million times, but you forgave me a billion times. Even in the loneliest of the paths, you were always by my side. The memories we shared are still young in my heart, but now they have become the voices of a distant star. But now, as the time passed by, we knew we could no longer hold our eyes and let the fate decide what our future holds for you and I. Although I do not believe in destiny or in fate, but I remember you once whispered to me that our biggest mistakes are always a mystery to us. And as today, I'm writing this overly due letter, consciously knowing that it will not make any relation better. Because I left you alone in the rain. You were not shivering, so I chose to ignore your pain. But in the end, all I will say is, I'm sorry. I was foolish. I was selfish. And indeed, I was just a kid. Because I abandoned you. As I took you for granted. I'm sorry. My first bicycle. I hope one day you will forgive me one day. There's another one, because time is left. It's a short one. Yeah. So today, I heard the word multiverse. Though it was not the first time, but however, it was the first time its essence has left a mark on me. Now I cannot stop but wonder, being the wanderer of thoughts that I am, that in the magnitude of multiverse, what personalities and what entities I would be rolled on with. I wish I had dreams that each one would be as terrible, as blessed, and as fortunate as nightmares. In one, I'd be a migrating bird flying across borders, delivering stories to another worlds, who are born with featherless wings. And another, I'd be a mother in an ancient time, which as per me is the only peaceful time we lived in. A mother raising her children and watching them play, fight, cry, and grow old. That's all. That's all. But wait. In one, the wildest one, I wouldn't wanna travel across the universe, meet different people, tell countless stories, drink the finest liquor, smoke the heaviest stuff, and where everybody loves me and knows me. But no, I would just want to dot. Come on guys. Playing tricks with us, making us feel about love and heartbreak. Here we are thinking about our loved one. Suddenly he's like, bicycle. you guys saw the smile on his face when he said bicycle. I love it. Do you still ride a bicycle? You ride a cycle right now? Okay. Any adult here who rides a cycle? Yeah, like regularly? Oh, nice. Like where do you what kind of cycling trips do you take, or what is your regular comfort cycle period time? The city I live in, it's usually around the entire city. Wait, so you're not talking about Bombay? Family's from Bombay. I was born and raised in Dubai. Oh, there's space there, of course. Like that, you can like cycle around, and I'm sure there's like. So, you moved here when? Like moved to Bombay? Pune. Okay, moved here. About a year ago for college. Okay. And you're doing college right now? Yeah. In Pune? Yeah. So you come from Pune for. Oh my God. I don't know how to feel, man, when people come. It's very good. I'm happy for you guys. But it's just very shocking. So Pune, what do you think? First, what do you think of Pune? Second, is there space there to cycle? No. But it's a slow city. It's nice. Yeah, it's slower than this. Yeah, definitely. Yeah, it is. Like, I come from Bangalore, and Bangalore weather and city, the landscape, the way it is,
spaced out. I feel Pune is very similar to that, weather-wise, all of that. People I'm not interacted that much with, but yeah, it's definitely slower than Bombay. Only Bombay is like, yeah, it just feels like you come in the city and you feel like everyone's running a marathon. Which marathon? Nobody knows. Who is in what place? Nobody knows. But everyone's just running to marathon. That's so. But you still cycle, like you still at least go off outside the outskirts or outside the city or something. There's not that much scope in Pune, but जो कुछ भी हो जाता कर लेता हूँ. Okay, that's nice to know, man. I mean, it's yeah. I just hope we find all the roads in this city and Pune eventually in time for our bikes and cars and humans to walk so that we can also cycle. Cycling is great. Like I loved cycling. Now when I think back in time, I realized I always had anxiety, and cycle helped me feel better about the anxiety, because I had so much anxiety. The body had to do something, so I would just pedal like crazy, and then I would like race. And I don't know why I had this, like I would daydream a lot, because I mean, clearly here I am writing stories. So like I used to daydream a lot. And this is a really bad part of my life that I'm going to share, okay? I saw this movie called Tara Rampam, okay? I don't know how many of you saw the movie, liked it. How many of you liked it? Yeah, anyone? Oh, great. How many of you felt emotional in the end, last scene? Yeah, great, okay. So I saw the movie, and every time I would see a movie which was around car, racing, bikes, all of that, when the movie got over, I would then sit on my cycle and assume that is that car, bike, or whatever vehicle, okay? So I saw Tara Rampam, I got so excited, and Bangalore is hilly, so there's a lot of uphill. So I saw an uphill, and I don't know why I became, I forgot the guy's name, but I became the character Saif Ali Khan was playing in that movie, RV. I became RV, and I cycled like crazy, and then that day I felt like RV. And this would happen every time. Every time I would watch a movie, every time I would watch Tara Rampam, and then I would go cycle, I would just feel like I am this guy. That's just how it went. I don't know if you guys ever saw movies and pictured yourself like this. Yeah. Or is it just me? Okay. I thought it was just me, but okay, cool. Okay, I'll call the next person. You guys know what to do. Start clapping, start clapping. Let's go. Can we please have Neerav? Thank you so much, Harsh. So, Abhi, you know, we've had heartbreak, we've had love, all of that. I wrote at a time where I was going through somewhat of an existential crisis. सोच रहा था कि क्या करूं, क्या ना करूं. And I noticed there's a lot of good going on, there's a lot of bad going on. And I didn't know who to blame the bad on. Naturally, I blamed it on circumstance. मेरी गलती नहीं थी. And then I realized that whenever something good happened, you know, I won something, I went somewhere in life, I took credit for that. And I didn't just blame it on circumstance. And that's when I realized that a lot of people do this, and maybe you shouldn't. Maybe you should attribute the good and the bad to yourself. So the poem I've written, actually inspired from a recital over here about a year ago. Someone recited a poem, Mrig Trishna Hotam. This one is called Khud ba Khud, Apne Aap Hotam. Now it starts, माँ काली को पैदा करने वाली पार्वती की बहादुरी होतम. माँ काली को पैदा करने वाली पार्वती की बहादुरी होतम. जन्म से लेकर मृत्यु का झाप होतम. खुद ब खुद अपने आप होतम. जन्म पर ममता का दर्द होतम. जवानी में पिता धर्म का गर्व होतम. कि शुरुआत से लेकर अंतकाल का माप होतम. खुद ब खुद अपने आप होतम. अपने हर अधर्म का संताप होतम. अपने हर कर्म का अपराध होतम. अपने सारे पीड़ों का पाप होतम. खुद ब खुद अपने आप होतम. कि कृष्ण देव के मुख में बसा संपूर्ण ब्रह्मांड होतम. कृष्ण देव के मुख में बसा संपूर्ण ब्रह्मांड होतम. कोई छोटे से शहर में छोटे से समाज का सम्मान होतम. अपने हर विजय के मौज में जश्न का ताप होतम. खुद ब खुद अपने आप होतम. Now early in this poem I said कि जीवन से लेकर मृत्यु का झाप होतम. Because if you believe in reincarnation, you know you're born, you live your life, you die, and then it happens again and again and again. And that's why I call it a झाप. Now to finish, खुद के हर सफलता से लेकर अपने हर नुकसान के गुनहगार बनकर
जीवन में सारी खुशियों के खुद जिम्मेदार हो तुम, के जन्म से लेकर मृत्यु का श्राप हो तुम, खुद ब खुद अपने आप हो तुम। थैंक यू। Now I see I have about a minute. So, like I said, I'm not from around. And adding to the whole love and heartbreak thing, I was in Dubai. I started texting this girl from Bombay, and oh yeah. And I liked her for a solid 11-12 months. Doesn't happen usually. And her best friend, who was my friend in Dubai, she's like, "भाई तू क्या कर रहा है? तूने बस text ही तो किया है, मिला भी नहीं अब तक." This was 3 years ago. I still haven't met her. दम ही नहीं है. And you know, that's when I told her, प्यार तो कभी भी हो सकता है ना, किसी के साथ हो सकता है. You know the person, you know how they are, the music they listen to, the way they talk, the jokes they make. प्यार तो हो सकता है. तो लिखा है, किसी बेगैर ने पूछा था, जिस अनजान के हाथों को गले लगाने को हथेलियां अब तक तरसती हैं, just to hold their hand. जिस अनजान के हाथों को गले लगाने को हथेलियां अब तक तरसती है, उसके प्यार के आवारगी में किसी की रूह इतनी कैसे घूमने लगे, किसी की रूह इतनी कैसे घूमने लगे. तो जवाब में उसने सुना, बरखुरदार उसकी छुअन की क्या कीमत होगी, जिसके आंखों के नशे में खुद अफीम झूमने लगे. थैंक यू. Thank you so much. We can put that in love. Love, Yeah. Okay, great. So we're 3-3 right now. That's exciting. We have maybe five more people. Let's see if it goes somewhere. If it doesn't go somewhere, then remember we all are winners. Okay, don't worry about this. You mentioned something about so you talking to somebody in Bombay when you were in Dubai. Yeah. And this is back when, like, how many? COVID के बीच में. Okay. And then did you get to meet the person? I mean, I got to meet the person. I didn't meet the person. Oh, you didn't. You decided I'm not going to meet. Yeah. But did any specific reason why? It's good. Okay, you just couldn't. Acha. It sounded more like I'm not going to meet you, regardless of you meeting me. Okay. It was just circumstance that couldn't. No. I didn't have the guts to go and show up. Be like. Oh. Yeah. And now what's the status around this? Nothing. We text once in a while. You know, she'll be like, "Bombay कब आ रहा है?" बोला आ रहा हूँ, मिल लूँगा, फिर नहीं मिलता हूँ. Like today, you are in Bombay right now. So are you immediately going to go back to Pune? No, I'm going tomorrow. Okay. And what are you studying right now? Economics. From which college? Symbiosis. Okay. SSE. Wait, you are also in Symbiosis, a different course. Yeah. Different college. Graduate from Mannagar. I specialize in journalism. Okay. How do you guys rate Symbiosis as a college? How do you? Rate Symbiosis as a college. I rate mine as a 9 out of 10. Yeah. 7, 8. Yes, 7-8 is not the same as 9 out of 10. Like, okay. You guys are different campuses, or this is the same campus? Different campuses. And all of them were like huge proper campus, like not a Bombay building, like no. Ours was NM types. Oh, building. Yeah. We shared our campus with design, but ours was pretty huge campus. Because campus is a thing. How many of you studied in Bombay? Studied in Bombay, degree college in Bombay. Jagah theek hai yahan pe, matlab. In your campus, I'm saying. Do you guys? Go and check Jai's college. There are hardly any students. I mean, Jai Hind still has some space compared to like a Mitibai or NM, because the minute I found out Mitibai has 16 colleges in 4 floors, I was like, I've never seen so many colleges all at once. And then they explain how the division is. It's a little crazy. And then apparently the richer version is NM in front of it. Yeah, like the same college, same course, but richer. Like you can pay more and then, I don't know, get AC classrooms or something. I don't know. So which year are you in right now? First. Oh, you just... okay. So yeah, it's a 3-year course. 4 year, okay. Anything specific that gets you interested in economics so much? I mean, I liked it in school. It was my favorite subject. Okay. And I figured if I'm going to work corporate, Yeah. this is my best option. Okay. And did your family move to Pune or what? Just me. But Pune, out of like, you were in Dubai, you could have gone to Europe, US. You were like, No, I wanted to stay in India at some point in my okay. life.
So Okay. between Mumbai and Pune, fast city, slow city. Yeah. I mean, if I had an option to like do the things I do in Pune, I could have. But Bombay is better that way. How do you find what is at least one major difference that you see apart from the obvious ones? In Mumbai and Pune. Yeah, no, in Pune and Dubai. In Pune and Dubai, there isn't as much No? as you think. It's just maybe. People are shocked. That means have I gone to Dubai already because I've gone to like Pune? But yeah, so Maybe the way things are built here and there, but apart from that, there isn't that. I mean, building तो we can't compare only. Like वो लोग ऐसा ऊपर पता नहीं चलता bro. All of the time lapses have only clouds in it. There's not the building because the building is so like tall. God, it's crazy. Also, what is the tallest building that you went to in Dubai? Burj Khalifa. Where is the last floor that you can go The to? last floor is somewhere around 135. There's 40 floors above that, but those are just offices and काम करने वाले लोग. Wow, dude, I would love to go take a lift to like 150th floor. My office is in 150th. That's this is crazy. But any other difference apart from just the building? Nothing else. No, Just the nothing. people, the way they behave. The people, might be more diverse in Dubai, but the way they treat you, the way they talk to you. I mean, you see all kinds of people in both places. Yeah. ठीक है. मेरे को नहीं पता और क्या बोलने का मतलब. मुझे दुबई जाना था. My parents have been convincing me to like we should take a family trip to Dubai. I don't know why. I've just been like we should go somewhere else, and I don't know. And we have someone who works here at Habitat who's from Dubai, and she will just doesn't recommend anything. If I ask her if I want to go to Dubai, she's like, don't go. She's like, I want to go there. She's like, no, take a flight there and then go to London or go to some other place. I was like, this is rude. Why you? She was born and raised there. Are you also born and raised there? Yeah. She was born and raised there. I don't know what is this extreme. And she lived in an area where there are a lot of Indians also. So she was annoyed. By the time she came back to India, she's like, this feels the same. Like, I don't. Because apparently the whole Indian community, it really around that feels like you're in India because of Yeah, how people it are. does. And you also lived in a majority. There is most of Dubai. पूछते हैं मुझसे कि अब मैं कहाँ हूँ, कहता हूँ उनसे कि ढूंढना ना मुझे अब मैं जहाँ हूँ. तुम्हारी सोच से मैं थोड़ा सा ही बड़ा हूँ, शायद इसीलिए आज मैं इस मंच पे खड़ा हूँ. और होली आ रही है, मैम ने होली के बचपन की बात करी तो मैं थोड़ा सा अडल्टहुड में जाना चाहता हूँ कि रंगों के भी रंग है और इंसानों के अलग ढंग है. कुछ ना कहकर कुछ लोग संग है और किसी और की कुछ अलग जंग है. लगे हुए रंग तो धुल जाएंगे, क्या रंग बदलते इंसान दो कदम भी चल पाएंगे. शायद ये सब बहुत कम लोग कह पाएंगे. क्या इस साल भी हम लोगों को पहचानने में पीछे रह जाएंगे. क्या इस साल भी हम लोगों को पहचानने में पीछे रह जाएंगे. और एक चीज़, जब मैंने फर्स्ट टाइम हैबिटाट में परफॉर्म किया था तो वन लाइनर्स में लिखता रहता हूँ, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल मैं ज़्यादा लिखता हूँ. एक्चुअली आई डू रैप ऑल्सो, जो मेरे 4 सॉन्ग्स यूट्यूब पे है ऑलरेडी.
तो उस टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम हैबिटाट में परफॉर्म किया था तो स्टार्टिंग इसी से करी थी, तो आज मैं एंड उसी से करूँगा कि कामयाबी तो मेरा इंतज़ार करना, कामयाबी तो मेरा इंतज़ार करना, देर से ही सही पर मैं आऊँगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। Can't say much. Thank you so much for doing that. Thank you, sir. Cool. Anyone has plans today? Any plans after this? Yes. Yeah. Nice. What plans? Because no one else has plans, so we all are just going to listen to you and feel like great. At least you have plans. I have theatre audition. Oh, nice. Wow. Wow, dude. Yes. I love this. People are so sweet, dude. I have nothing actually. Yeah. That's Sunday fun day. Nobody else has any plan? This was the highlight of your day. That's okay. Very sweet. And how many people are studying? How many people are studying? You look like you're studying for sure. I don't know. Three. What are you studying? Oh, both of you in same college, same. Oh, you guys are friends. You guys have come together. Oh, lovely. Do you also write and perform? No. I write, but I don't perform. Okay. Soon enough then. Maybe that's yeah. It's nice. Sometimes I've seen people who come in, they're like, I'm not going to perform, and then it's nice. 3 months later, you see them performing. So hopefully, you will perform again. आप कब भूल गया यार मैं? आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? Kids, bro. This guy's in 12th. Okay, guys, he's in 12th. He's organizing open mics. He's performing. कितने साल से perform कर रहे हो? 6 महीने से perform. But still, you're organizing events, you're performing. 12th, like science, commerce. साइंस है फिर आगे घर वाले बीटेक। अच्छा, तुमको क्या करना है? घर वाले पे चले गए, आगे घर वाले। तुमको क्या करना है? आर्ट में करना है तुमको। ओके, तो फिर PCM जब लेना अब तो ठीक है, डिग्री के लिए चाहिए कुछ तो ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, cool. I'll call the next performer. You guys know what to do. Let's go. Can you please have Nandan? Thank you, Harsh. So I have come with a story for you today. A few days back, I got an invitation to play PlayStation with a couple of strangers. Any PlayStation fans here? Nice. So, and I was like, okay, I'll go और कुछ करने को है नहीं, जाके खेल लेता हूँ. So I went and I was getting ready. पर अंदर से फीलिंग आ रहा था कुछ तो इम्पोर्टेंट हो रहा है आज, कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है. समझ में नहीं आ रहा था पर कुछ तो इम्पोर्टेंट हो रहा है. सो आई ड्रेसिंग, हमने एग्जैक्टली जो अभी पहन रखा है ना वही पहना था मैंने, है ना. आई वोर दिस स्वेटशर्ट ब्लैक, इट फिट्स मी नाइसली. बट जब भी लोग मेरे को इसमें देखते हैं बोलते हैं यार तेरे को देख के हमको गर्मी हो रही है मुंबई में फुल स्लीव एंड बट इट फिट्स राइट, यू नो. एंड दिस जीन्स, मैं दोस्त बोला यार स्कूल जाते बच्चे का लग रहा है यार कलर, मतलब बट आई लव द कलर. And boots. I fucking love boots. You know, as a kid, since I was a kid, I always wanted boots. Never could get it. As an adult, I can. So, thankfully. And, पर मैं सोच रहा था यार, why is this important? Why is going to these bunch of strangers playing PlayStation? Why is this important for me today? You know, and फिर मेरी कहानी का फर्स्ट एक्ट आके मेरे आंखों के सामने खड़ा हो गया. दिस वॉज 10 years ago. जब मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं था, नथिंग एट ऑल, राइट. आई वॉज डिप्रेस्ड, आई डिडंट नो इट. आई वॉज सैड, आई वॉज सोशली एंशियस, आई वॉज आइसोलेटेड. मैं फर्स्ट टाइम बाहर पढ़ने गया था, ठीक है. एंड आई वॉज सिटिंग इन माई रूम वॉचिंग नारुतो एनिमे. For people who don't know, it's a cartoon about a guy who is isolated by society but can still believe he will become the head of his village. That's an oversimplification, but still. But मैं वो देख रहा था, and that night also there was a college event
जाओ प्ले स्टेशन खेलो। मुझे जाना था, मुझे जेन्युइनली जाना था, पर नहीं हो पा रहा था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, पता नहीं क्यों। मैं बैठा नारुतो देखता रहता था अबाउट दिस गाय बीइंग ब्रेव कॉन्स्टेंटली डिस्पाइट एवरीथिंग, बट आई कुडंट डू द सेम। मैं वो कमरे में बैठा हुआ था, लाइट भी चालू नहीं थी, एंड मेरे को हंसी की आवाज़ आती रहती थी, और आते जाते लोगों को देखता था, मेरे को लगता था ये लोग गए होंगे पार्टी में, दे मस्ट हैव हैड सो मच फन, बट इवन देन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ इतना पता नहीं था, और 10 साल तक ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा किस्सों में, फिर भी पूरी तरह नहीं जान पाया until the very end. So when I realized why this is important. This night when I'm going to strangers to play PlayStation, why this is important to me. I was like जाऊँगा आज, कुछ भी हो जाए जाऊँगा, like ट्रैफिक होएगा, कोई कुछ भी होएगा, जाऊँगा मैं. And I went. They were playing FIFA. I fucking hate FIFA. It's the stupidest fucking game ever. No offense to football fans here. And there was pleasantries, थोड़ा बहुत बात किया, बैठा रहा मैं. But I was happy. You know why? Because I was part of my own story. I was present. मैं देखा इधर उधर, and I wasn't thinking about what other people are thinking about me. I'm just present. कि हाँ मैं इधर हूँ. And that brought me great joy. Thank you. Thank you. Three more people, guys. 3 more people. I want to make an announcement before that. So, I've been performing for 5-6 years now, and the idea is to create more space for artists, more space for poets, storytellers, and different kinds of performers to come in and be together. And that's how the idea of gathering or creating a space began. And not like physical space, like a metaphorical space that we can create for everyone to come and share it. And that's how 18 or 19 months ago, we started a property at Habitat called Creative Block Party. Creative Block Party is a space where different performers come in, and we have 2 shows every month. One is either a Mushaira or a Kavi Sammelan, one is a lineup. And we have these shows every month, they're completely free to attend. The whole idea is to promote the art, get as many audiences, build an audience, build a community of artists and performers, and to get performers a chance to come in and try out new material, whether it is them going for a solo show or them doing lineup shows or them going on tour. A lot of performers are going on tour. So them to try out the stuff before they actually go on tour. That's why this space is set up. So we have a show coming on 27th, which is this Wednesday. We have a show coming at Above the Habitat. There's another venue we have 3 floors from here. It's called Above the Habitat. So wahan pe the event is happening. There are really, really good artists. I mean, I can name the lineup if you guys want. If you guys don't want, then you can go on the page and figure out live. So just check the page out. It's called Creative Block Party. Block mein K nahi hai. Okay, so it's Creative BLOC Party. Go follow the page. We are putting the lineup out. The RSVP link is in the bio. Go in the type in the link in the bio and then type your name and just a few like Instagram ID and be like you're going to come, and then you can come attend the show for free. I hope to see you guys there. We are doing 2 shows a month, every month for free. So if you can come, please come. If you can't, please let your friends know who you think will be interested, or just spread the word around. Like Instagram is currency right now, unfortunately. So please help us reach out to more and more people. Thank you so much. I hope to see you there. And open mics, we have 2 open mics a week, Sunday and Monday. The only way to get a slot is to say yes. There is no other way. There is no person you can bribe. There is no, that's it. Yeah, that's the most offer that our team members or hosts get, that like, I'll take you out for this or I'll get you that, so put me, but nahi chalta wo. So yes is the only way to do it. Twice a week it happens. Live stream I've already told you about. Photos you'll get in 1 week. We have 3 more performers, okay? So I'll call the last 3rd performer. You guys know what to do. You guys know what to do. Can we please have Naseem? Keep clapping till he comes on stage. दो गज़ल है बड़े बहर की, थोड़ा
टाइम लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी उर्दू है और चूँकि यहाँ सब शायरी है, पोइट्री है, तो आप लोग शायद समझ जाएंगे। इतनी फिर भी 2-4 वर्ड्स है जो मैं बता दूंगा बीच बीच में। तो पहली जो गज़ल है ये समझ ली बचपन की प्यार की है, ये फिर पहले प्यार किया। कितने हसीन रंग भरे वो दिन थे प्यार के, कितने हसीन रंग भरे वो दिन थे प्यार के, बच्चों के हाथ आते थे पैगाम यार के, बच्चों के हाथ आते थे पैगाम यार के। कुछ बिन पिए ही चढ़ती थी हम पे खुमारियाँ, कुछ बिन पिए ही हम पे चढ़ती थी खुमारियाँ, चक्कर लगा के आते थे जब कुएं यार के, चक्कर लगा के आते थे जब कुएं यार के। याद आती है वो नाव वो माझी के लोकगीत, याद आता है वो नाव वो माझी के लोकगीत, वो यार बेवफा थे मेरे जमुना पार के, वो यार बेवफा थे मेरे जमुना पार के। देखा था कम सिनी में वो एक मद भरी निगाह, मद भरी शराब वाली आँखें, देखा था कम सिनी में वो एक मद भरी निगाह, बाकी बुढ़ापे तक है असर उस खुमार के, बाकी बुढ़ापे तक है असर उस खुमार के। और सब खेलते थे सब खेलते हैं जवान, सब खेलते हैं खेल जवानी में प्यार के, सब खेलते हैं खेल जवानी में प्यार के। और हम हुए हैं जवां मोहब्बत में हार के, और हम हुए हैं जवां मोहब्बत में हार के। उस बेवफा के सीने में पत्थर था दिल नहीं, उस बेवफा के सीने में पत्थर था दिल नहीं, और हम आए दिल उसी पत्थर पे मार के, और हम आए दिल उस बेवफा के सीने में पत्थर था दिल नहीं, और आए हम दिल उसी पत्थर पे मार के। ये थोड़े बड़े बहार की नज़म है और थोड़ी सी ख़ास उर्दू है कि ये चमन में कैसी है बेकली, ये गुलों में कैसा अजाब है, ये चमन में कैसी है बेकली, ये गुलों में कैसा अजाब है। यहाँ बुलबुले सभी बेसदा, यहाँ ज़ख्मी सारे गुलाब है, यहाँ बुलबुले सभी बेसदा, यहाँ ज़ख्मी सारे गुलाब है। मेरा रंग रूप उजड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप उजड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। किसी पल मुझे करार नहीं, किसी पल मुझे करार नहीं, ये फ़िराक है या अज़ाब है, ये फ़िराक है या अज़ाब है। कोई ऐसी दुआ मिले, मेरा यार मुझसे आ मिले, कोई ऐसी दुआ मिले, मेरा यार मुझसे आ मिले। मेरे चार अगर मुझे ठीक कर, मेरे चार अगर मुझे ठीक कर, मेरा जीना मरना अज़ाब है, मेरा जीना मरना अज़ाब है। और ये शेर देखें कि टाइम हो चला है, ये नए नस्लों के लिए कि नए दौर के नए बुलबुलो, ये बात जहन नशी करो, ये नए दौर के नए बुलबुलो, ये पयाम जहन नशी करो। जहाँ इश्क करना जुर्म हो, वहाँ जुर्म करना सवाब है, जहाँ इश्क करना जुर्म हो, वहाँ जुर्म करना सवाब है। ये जो शौखियाँ हैं शबाब की, कहीं वजह ना हो अज़ाब की, ये जो शौखियाँ हैं शबाब की, कहीं वजह ना हो अज़ाब की। ज़रा देख के पी ए जाने जां, ये शराब है कि शराब है, ज़रा देख के पिए जाने जां, ये शराब है कि शराब है। लास्ट लाइन है कि है नसीम बुलबुले बेगना, इसे अपने तर्ज में गुनगुना। बेगना मतलब जो गुनगुना नहीं सकता।
है नसीम बुलबुले बेगना, इसे अपने तर्ज में गुनगुना, इसे पढ़ना चश्मे तर से, ये तेरे ही दर्द की किताब है। इसे पढ़ना चश्मे तर से, ये तेरे ही दर्द की किताब है। थैंक यू। What happened? Thank you, sir. Okay, last two performers. Okay. Don't be sad, guys. Don't be sad. It's okay. We have open mics every twice a week, so you'll be very happy. Okay, appreciate it. Okay, last two people. You guys know what to do. Let's do it. Malin, can we please have Siddhant? आंखें ऑकवर्ड हो जाता है। मैं पीछे कब से देख रहा हूँ, अगर हर्ष ने ऊपर छोड़ दिया जो लोग हंसेंगे। हाँ यार, मुझे साइकिल चलाने का बड़ा शौक था, लेकिन 10th तक मेरे को बोला गया था कि फर्स्ट आ तेरे को साइकिल देंगे। मैं 10th तक फर्स्ट आ, मुझे साइकिल नहीं मिली। इतना डिप्रेसिंग नहीं, इट्स फाइन, डिप्रेस बाद में हो जाना, ठीक है। मेरा नाम सिद्धांत सावंत है। आई नो हम सब बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं। आई जस्ट वांट कि ताली ना बजाओ, कुछ ना करो, बस मुझे ध्यान से सुन लेना। दैट इज़ ऑल आई आस्क फ्रॉम यू। A lot of time it happens कि as artists we question a lot of things, और उसमें से एक है हम खुद को, हम दूसरे को किसी भी चीज़ के ऊपर डिफाइन कर देंगे, तू ये है, तू वो है, और फिर एंड में बोल देंगे तू मेरा क्या है। हम खुद के बारे में भी यही करते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इतना आता है कि हम पूछते रहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो उसी जोन में लिखा था कि हर अजान के बाद, हर रात के पहले, हर हिजरे के बाद, हर मुलाकात से पहले, अपनी सोच के उमटे छाले कहीं ना पाकर, बस अपनी जहन में मौन हूँ मैं नहीं जानता कि कौन हूँ मैं। अपनी माँ का इकलौता बेटा, या उसकी बस एक जिम्मेदारी, जिसमें उसने अपनी सारी उम्र, अपनी सारी सांसें हारी। अपनी माँ के नाम से पहचान मेरी, अब उसकी पहचान मैं कैसे बनूँ, जिसने संवारा दिन रात 9 महीने तक, और उसके बाद भी अब उसके साए के बाहर मैं कैसे बढ़ूँ। मैं उसका बस एक अंश मात्र, मुझसे उसकी पहचान क्या होगी, हुई भी अगर किसी दिन तो पहचान बस खोखले नाम की होगी। क्या अभी उसका बड़प्पन है या बस एक माँ का प्यार न जाने, कहती कि उसका अभिमान हूँ मैं, अगर ठुकरा दे एक पल के लिए भी, बताओ फिर कौन हूँ मैं। शब्दों से खेलता मैं या अल्फाजों का बस इस्तेमाल करता, कलाकारी के नाम पे रोजगार ठुकराता या बेरोजगारी का बस इस्तेकबाल करता। कभी कहता कविताओं से, कभी बोल पड़ता कागज पर लकीरों से। शहजादों की आंखों में बस अंधेरा दिखता, धूल भरी शहजादों की आंखों में बस अंधेरा दिखता, मगर धूल पे भी रोशनी मिलती, बात करो जब फकीरों से। मंच पर ढूंढता सांसें अपनी, ख्वाहिश है कि खो दूँ इसी किसी मंच पर, मैं नहीं जानता कि कौन हूँ मैं, तभी ओढ़ता कलाकार की वर्दी। यहाँ आशिक किसी को टूट कर चाहते हैं या किसी को चाह कर टूटते हैं। मैं बस मोहब्बत में खुदा इस कदर काबिल हूँ कि मेरी मोहब्बत को देख वो चांद सितारे भी रूठते हैं। वो मेरी जाने गज़ल, वो इस शजर की मलिका, मैं उसकी बस एक मोहब्बत का मोहताज हूँ। वो मुझ पर तराशी गई शायरी, मैं उसका बस एक राज हूँ। अगर किसी दिन मेरे रकीब तू कहे कुछ भी ना, और ये तेरी आंखें बस एक तक मौन है, मैं नहीं पहचान पाऊँगा कि इस आईने में खड़ा ये आशिक न जाने कौन है। अब तक तो समझ गए होगे कि मैं खुद से लापता, बंजारा, आवारा, मुझ पर कतई विश्वास नहीं। मैं ना ढूंढ पाता खुद को अगर मेरा कोई मेरे पास नहीं। मुझे ज़माने से ना कोई शिकायत, खुद पर ताने में खुद ही फेंकता हूँ। मैं अपने साथ भी आजकल थोड़ा खिसक कर दूर बैठता हूँ। मैं बंधा नहीं इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। मैं बकरी के भेष में आए भेड़ियों के बारे में सोचता सचमुच नहीं। मैं बंधा हूँ बस एक धागे से, मैं खुद के बारे में भी सोचता कुछ नहीं। मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता सही, मगर शिकवा तन्हा होता है दिल, जब मंजिल तक का फासला कम होता नहीं। तब अगर जज्बा और थकावट दोनों खुदा को सौंप दूँ मैं, ना रहूँ मुसाफिर ना भटका मैं साहिब, बताओ फिर कौन हूँ। कहते हैं खुशबू से आती है एक रोज़ जहन में किसी की याद, मैं तेरा इत्र तक नहीं ओढ़ता, मेरे बदन से महक तक ना मिले तो बताओ कौन हूँ मैं। जिंदा को गिराने और मुर्दा को उठाने में लगती भीड़ की कोशिश, अगर अकेला खड़ा भी ना रह सकूं तो कौन हूँ मैं। बारिश ना हो तो हाथ में ये छाता भी भारी लगता है, मैं तो किसी की छाव तक ना बन सकता, तो बताओ कौन हूँ मैं। अगर ये ज़मीन से जुड़े पाओ किसी दिन हवा में लटके मिले, अगर मेरे जनाजे में मुझे मेरा कोई अपना ना मिले,
अगर मेरे कब्र के लिए मिट्टी कम पड़ जाए, अगर मेरी चिता के लिए कोई पेड़ कटने से इनकार कर दे, तो बता कौन हो? जब खत्म हो जाए या जमहूरियत का खेल और मिटने लगे निशान मेरे ही कातिल फिर ये सवाल करेंगे, न जाने आज क्यों इतना मौन हूँ। अपनी बेजान रूह से एक सांस में पूछूंगा तब भी, बताओ मेरे कातिल आखिर न जाने कौन हो। थैंक यू सो मच इतना ध्यान से सुनने के लिए। That's all my time. Please give it up for Harsh. Yes. Woo. Yes. For what? Last performer. Yes, last performer, guys. That is it. I'll call the last performer, and then that's it. So, validation is free, guys. Okay. Money is money. Validation is free. So, if you like someone's work, let them know. Like I told you, writing is a very long process. So it is nice to know that we're on the same boat of what you're trying to express, trying to understand all of that. Great. So I'll call the last performer. Very excited to watch her perform. Haven't seen her in a while. So yeah, let's go. Together, last performer for tonight. Can we please have Shelja? थैंक यू एक जोरदार तालियां सारे परफॉर्मर्स के लिए। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग यार, मस्त, बहुत मज़ा आया। तो दो शब्द के ऊपर है ये, फलाने और बंटा। ठीक है, मूड वही है तो मैं मूड सेट कर देती हूँ। फलाने मतलब कोई भी ना, कि वो फलाने आए थे तो वो आए थे मतलब फलाने आए थे। जो शहर में है जिनको फलाने का मतलब नहीं समझता, मैं और समझा सकती हूँ। किसी को फलाने का मतलब, आप दुबई से, आपको समझना सही फिर और बंटा मतलब बॉडम बकचोद टाइप के लोग है ना। बंटा का मतलब समझते हैं कि बंटा टाइप का आदमी है, तो वैसे टाइप के आदमियों पे नहीं, इंसान पे है। आपके जीवन में अगर कोई औरत हो तो बिल्कुल हो सकती है। मेरे अंदर भी बहुत एक बंटा है, सबके अंदर एक बंटा होता है, एक बकलोल टाइप का थोड़ा सा इंसान कभी ना कभी बाहर आता है। मुझे लगता है मस्त चीज़ है, वो होनी चाहिए। तो ये स्पेशल किस्म के बंटा टाइप के लोगों पे है। तो ये है कि फलाने क्या हैं, फलाने बंटा हैं। फलाने क्या हैं, फलाने बंटा हैं और लेके चले किसी और का डंडा है। सुनते हैं बात कहीं तो कहीं और गा के आते हैं। सुनते हैं बात कहीं तो कहीं और गा के आते हैं, और बोलने बैठते हैं तो बना लेते फंदा है, क्योंकि फलाने क्या हैं। जाके देखो इनके घर तो है बहुत सारे औजार। सारे चीज़ का सल्यूशन रहता है ऐसे लोगों के पास। तो जाके देखो इनके घर तो है बहुत सारे औजार। पूछो है शहर कहाँ तो बताएं नदी के पार। चलते हैं तो कदम ठहक ठहक के उठते हैं। चलते हैं तो कदम ठहक ठहक के उठते हैं, और सोते हैं तो देखते हैं सपने में कार, क्योंकि फलाने क्या हैं। अरे जोर से बोलो जय माता दी। ठीक है, तो बात बात पे इतिहास सुनाते हैं कि हम स्कूल जाते थे नदी पार करके, अब रोड आ गई, अब हम क्या करें। हम भी नदी पार करके कैसे जाएं। तो बात बात पे इतिहास सुनाते हैं, झोपड़ी की व्यथा पे बहुत रुलाते हैं। बात बात पे इतिहास सुनाते हैं और झोपड़ी की व्यथा पे बहुत रुलाते हैं। मांग लो इनसे मदद तो कहें कि सब माया है। मांग लो इनसे मदद तो कहते हैं सब माया है, लेकिन भाग भाग के अभियान बनाते हैं, क्योंकि फलाने क्या हैं। अब एक मुंबई में बड़ा चलन है कि किसी को तारीफ कर दो कि अरे यार आई लव्ड योर वर्क, तो बोलते हैं शाम को क्या कर रही हो। मुझे समझ नहीं आता, मैं क्यों बताऊं मैं कि शाम को क्या कर रही हूँ। तुम्हारा काम अच्छा था बस, पीरियड। तो कर दो अगर तारीफ तो सोने ही चले आते हैं। कर दो अगर तारीफ तो सोने ही चले आते हैं, कि पूछ लो अगर प्यार भी है तो गजब रुलाते हैं। कहो कि अरे आप तो महान हैं तो कहते हैं आदमी माटी है, और फुलवारी में खो जाते हैं, क्योंकि फलाने क्या हैं, फलाने बंटा है। रोज चखने में सिर्फ नमक है खाते, रोज चखने में सिर्फ नमक है खाते, बाजार के सारे नियम है जानते। रोज चखने में सिर्फ नमक है खाते, बाजार के सारे नियम है जानते। मोल भाव की लगाते हैं रट, और मात्र एक बोतल में हो जाते हैं सफाचट, क्योंकि फलाने क्या हैं, फलाने बंटा है। अब चाहते तो हैं अमेरिका जाना, बहुत लोग के सपने होते हैं ना अमेरिका जाने के। तो चाहते तो हैं सब अमेरिका जाना, चाहते तो हैं अमेरिका जाना, सूट बूट में बोली लगाना।
मैं भी एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी, तो आई थिंक दिस इज़ फॉर मी ओनली। नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, आगे गड़बड़ है। तो चाहते तो है अमेरिका जाना और सूट बूट में बोली लगाना, चाहते तो है अमेरिका जाना, सूट बूट में बोली लगाना, नशे में कोई कभी कमी नहीं छोड़ते। जीवन क्या है, सोना खाना नहाना, क्योंकि फलाने क्या है, फलाने बनता है। कुछ फलाने बड़े खूबसूरत किस्म के लोग भी होते हैं, है कि नहीं नंदिता? तो ये खूबसूरत टाइप के बंटा लोग पे है कि देख ले पलट के तो कर देते हैं दंग, और सांस भर भर के देख ले पलट के तो कर देते हैं दंग, और सांस भर भर के खड़ी कर देते हैं जंग। मेले से जीत लाते हैं हर एक खिलौना, लेकिन प्रेमिका को पकड़ा देते हैं प्रेम में पतंग, क्योंकि फलाने क्या है, फलाने बंटा है। उड़ते हैं आसमान में आंखें बंद करके, जोड़ते हैं चवन्नी जेबें जर्द करके। उड़ते हैं आसमान में आंखें बंद करके, जोड़ते हैं चवन्नी जेबें जर्द करके। पूछो जनाब हाल कैसा है, तो ले आते हैं कलाकंद रस निचोड़ के, क्योंकि फलाने क्या है, फलाने बनता है। अरे वो चाहे तो बर्फ़ में आग लगा दें, वो चाहे तो बर्फ़ में आग लगा दें, कुर्सी की लड़ाई को साफ करा दें। देखते हैं सनीमा तो सो जाते हैं, और पढ़ते हैं कविता तो रो जाते हैं, क्योंकि फलाने क्या है, फलाने बनता है। दही पूड़ी की मक्खी निचोड़ कर खाते हैं, दही पूड़ी की मक्खी निचोड़ के खा जाते हैं। चौराहे पे पड़ी रस्सी मरोड़ घर ले आते हैं। वो कुछ लोग नहीं होते गमला उठा के लाते हैं, उनकी वीडियो आती है CCTV वाली। तो दही पूड़ी की मक्खी निचोड़ के खा जाते हैं, और चौराहे पे पड़ी रस्सी भी मरोड़ घर ले आते हैं। गाते हैं सारे धर्मों की गाथा, और बात बात पे करोड़ों की बोली लगाते हैं, क्योंकि फलाने क्या है, फलाने बनता है। सुनते हैं आधी बात आधी पचा जाते हैं, 100 रुपये के राशन में 10 रुपये बचा लाते हैं। सुनते हैं आधी बात तो आधी पचा जाते हैं, और 100 रुपये के राशन में भी 10 रुपये बचा लाते हैं। नाले के पानी को बता देते हैं गंगा, और समंदर से भी ये नमक निकाल लाते हैं, क्योंकि फलाने क्या है, फलाने बनता है। कभी बजाते हैं तबला तो लगे है थाली, ये बजाते हैं तबला तो लगे है थाली, और घुमा घुमा के सबको मार देते हैं गाली। गोल गोल मुंह बनाकर देखते हैं शीशा, और बढ़ जाती है दाढ़ी तो बुला लेते हैं माली, क्योंकि फलाने क्या है, फलाने बनता है। बातें हैं लेकिन इनकी बहुत बड़ी, बातें हैं इनकी बड़ी बड़ी चड्डी, लेकिन अभी भी इनकी वहीं है पड़ी। बातें हैं इनकी बड़ी बड़ी चड्डी, अभी भी उनकी वहीं है पड़ी। बातें हैं इनकी बड़ी बड़ी चड्डी, अभी भी वहीं है पड़ी। चमका के चलते हैं अपनी ऊंची जात, सोच लेकिन अभी भी इनकी वहीं नीचे पड़ी, क्योंकि फलाने क्या है, फलाने बनता है। थैंक यू। I love this non-verbal communication that we've reached to. That brings us to an end to this poetry open mic, guys. Can we please have a round of applause for everyone who performed, who came? Thank you so much for coming. Can I request all the performers to come up on stage for a group photo? The rest of you, the rules are the same. Live stream, you can take from your YouTube. Photos will get in a week. We have 2 open mics. We have Creative Block.